Hello friends. So today we will discuss our next act, which is the Act of 1781. So this act is also known as the Act of Settlement or Bengal Judicature Act, that is Act of 1781. So I'll write the title of the act. So we have already studied the Regulating Act 1773. Now we'll study the Bengal Judicature Act 1781, also called the Act of Settlement or Amending Act of 1781 or Amending Act 1781. So we have already studied the Regulating Act 1773, in which I have already told you that there is the defect of Regulating Act 1773. One of the defect is that there is a tussle between the Governor General in Council as well as the Supreme Court, because Governor General in Council has also given powers over the different servants of the company, and over the revenue, military and civil decisions which are to be taken. So Governor General is responsible to take those decisions, and so it has got full powers over the revenue possessions, military possessions, as well as the civil decisions which needs to be taken. Similarly, the Supreme Court has also been established, and Supreme Court will the jurisdiction of Supreme Court will be over the British subjects as well as the servants of the British East India Company. So so if they perform any wrongdoing, so in their action, like for example, if they are collecting revenue and if they have done something wrong in that, so civil as well as the Nijamat, so both Diwani as well as Nijamat, or civil as well as criminal. So both Supreme Court has both civil as well as criminal jurisdiction. So there is always a tussle between Governor General in Council as well as the Supreme Court jurisdiction, because Regulating Act has made the Governor General in Council supreme body. Definitely it is Court of Directors, but Court of Directors has delineated the responsibility to the Governor General and its Council. But the Supreme Court also, because the jurisdiction of Supreme Court has not been properly defined, so there is always a tussle between the Governor General in Council and the Supreme Court. So the servants of the company or the revenue collectors always they raise a complaint that they are not able to collect the revenue due to the powers of the Supreme Court, or due to the cases which are registered in Supreme Court against them because of some revenue collection issues. So there may be any issue related to revenue collection. So if any issue arises, the case is registered in Supreme Court, so they are not able to collect the revenue. So basically many servants of the company have complained that they are not able to civil, military and revenue उनके पास administration था, so not able to entrust their functions, or not able to implement the functions which are entrusted upon them. So they are not able to perform their functions properly. Okay, so this is one of the issue, the tussle between the Governor General in Council and the Supreme Court, which leads to the this Bengal Judicature Act 1781 coming of this act passed by the British Parliament. So what does this act so we'll study this act. So इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को डिमार्केट किया गया, डेलिनिएट किया गया, डिफाइन किया गया सुप्रीम कोर्ट की. तो क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के ऊपर ये जुरिस्डिक्शन था वो खत्म कर दिया. तो सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन ओवर ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, ठीक है ना, ओवर दी servants of the company or officials, British officials of the company of East India Company, Governor General
और गवर्नर जनरल इन काउंसिल के डिसीजन, इन सबको एक्सक्लूड कर दिया, ये जुरिडिक्शन खत्म कर दिया इनके ऊपर। तो ये किसी के ऊपर भी जुरिडिक्शन अपना एक्सरसाइज नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, किसी के ऊपर भी। तो अगर कोई इशू आता है, सो द अपील लाइज टू द गवर्नर जनरल नाउ। गवर्नर जनरल की अपील किसके ऊपर जाएगी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर। पर सुप्रीम कोर्ट की खत्म कर दी जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो ब्रिटिश सब्जेक्ट, ब्रिटिश सर्वेंट्स और ऑफिशियल्स की अपील इनको जाएगी, इनकी अपील जाएगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की अपील जाएगी टू दी प्रिवी काउंसिल ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन में जो प्रिवी काउंसिल है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन यहाँ पे इससे तो खत्म कर दी, और क्या दे दी गई, ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। और किसको दे दी गई, यहीं पर डाउन कर देते हैं। और किसको दे दी गई जुरिडिक्शन, किसको दे दी गई? नेटिव इंडियंस के ऊपर। कौन से नेटिव इंडियंस? ऑफ कोलकाता, कैलकाटा की, ठीक है, नोट कैलकाटा, बंगाल, ठीक है, बंगाल के ऊपर ही आपका जुरिडिक्शन होगा और उसके बाहर नहीं होगा, और केवल भारतीयों पर होगा जो उस पर्टिकुलर बाउंड्री में रहते हैं, ठीक है। सो इट्स नॉट बंगाल एक्चुअली, उस टाइम क्या था, कैलकाटा था, कैलकाटा और बंगाल, व्हाटएवर यू कैन से, ठीक है। कैलकाटा के ऊपर जो बाउंड्री है जो ब्रिटिश के ऑक्यूपेंसी में, ऑब्वियसली जो प्रेसिडेंसी ब्रिटिश की, जितनी बंगाल में जितना भी ऑक्यूपेंसी थी, जो भी टेरिटरी उनके कंट्रोल में थी, उस टेरिटरी में जो भी इंडियन रिजाइड करते हैं उनके ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज कर सकती थी अपना जुरिस्डिक्शन, ठीक है, ये कर दिया गया, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, सेकंड पॉइंट लिखते हैं। कोई भी एपीलेट पावर्स नहीं दी गई, अपील नहीं कर सकते आप, एपीलेट पावर्स टू किसको दी गई? गवर्नर जनरल को एंड इट्स काउंसिल। गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को एपीलेट पावर्स दे दी गई, सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी गई। कहाँ से? फ्रॉम दी प्रोविंशियल काउंसिल, फ्रॉम दी प्रोविंशियल कोर्ट्स, सॉरी काउंसिल कह रहा हूँ, प्रोविंशियल कोर्ट्स, जो भी प्रोविंसेस में कोर्ट्स थी, जो कि स्मॉलर लेवल पे कोर्ट्स थी, ठीक है। जुडिशियल सिस्टम आप जानते ही होंगे कि स्मॉलर लेवल पे प्रोविंशियल कोर्ट्स थी, हायर लेवल पे देन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट्स थी, ठीक है। तो प्रोविंशियल कोर्ट से सीधा अपील जाएगी गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल को। सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है, कोई भी अपीलेट पावर्स कोई नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास, ये सेकंड पॉइंट। तो सुप्रीम कोर्ट में वो बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की पावर्स खत्म कर दी गई, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले पॉइंट में बताया था, तो अगर कोई भी रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है, रेवेन्यू कलेक्टर्स, कोई भी जुडिशियल जो भी ऑफिसर्स हैं ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, किसी के ऊपर एक्सरसाइज नहीं करेगा जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट, उसकी बहुत कम कर दी गई पावर सुप्रीम कोर्ट की। उसके अलावा थर्ड पॉइंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट, पर्सनल लॉज से गवर्न किए जाएंगे। पर्सनल लॉज विल बी यूज्ड, शैल बी यूज्ड, यू कैन राइट शैल बी यूज्ड टू गवर्न टू नेटिव इंडियंस। नेटिव यानी कि इंडियंस के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन अप्लाई करेगा, तो जो कानून होगा, कौन सा कानून के तहत एक्सरसाइज करेगा? पर्सनल लॉज, यानी कि हिंदूज के ऊपर अगर एक्सरसाइज कर रहा है जुरिस्डिक्शन तो हिंदू लॉ के हिसाब से करेगा, और अगर मुसलमानों पे कर रहा है, मुस्लिम्स के ऊपर, तो मोहम्मदन लॉज, ठीक है। तो पर्सनल लॉ शैल बी यूज टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन
over native Indians. Over native Indians. Hindu laws shall be used for Hindus and Mohammedan laws for Muslims. तो जब भी इनके ऊपर कोई केस आएगा तो हिंदू लॉज के हिसाब से ही जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करेगा या फिर डिसीजन देगा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बेसिकली। ठीक है, तो ये 2-3 प्रोविजंस मेन थे इसके अंदर। बंगाल जुडिकेचर एक्ट, क्योंकि जुडिशरी से रिलेटेड था, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स कर्टेल कर दी गई और गवर्नर जनरल एंड इट्स काउंसिल को स्ट्रेंथन कर दिया गया, स्ट्रॉन्ग कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को वीक कर दिया गया इस एक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो आप इसके डिफेक्ट्स लिखना कोई मुश्किल नहीं है, डिफेक्ट्स ही डिफेक्ट्स हैं। सो गवर्नर जनरल को एक तरह से गवर्नर जनरल को ही पावर दे दी गई। ठीक है, गवर्नर जनरल को जुडिशियल पावर दे दी गई, है ना, जुडिशियल पावर दे दी गई इस एक्ट के माध्यम से। तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ थी। गवर्नर जनरल हैज गॉट दी जुडिशियल पावर्स, यानी कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशियल दी गई, जो कि 1793 में खत्म हुई चार्टर एक्ट में। वो मैं डिस्कस करूंगा आपको जब मैं चार्टर एक्ट 1793 डिस्कस करूंगा, जिसमें इन्होंने क्या किया, जो भी एग्जीक्यूटिव को जुडिशियल पावर्स थी वो खत्म कर दी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है ना, वो केवल कोर्ट के पास ही रहेगी, जुडिशियल पावर्स एग्जीक्यूटिव को नहीं रहेगी। ठीक है, वो 1793 में वी विल डिस्कस। So this is the Bengal Judicature Act 1781, and now we'll discuss in the next lecture, that is very important act, Pitt's India Act 1784. ठीक है, till then wait for Pitt's India Act 1784. Thank you.